and welcome to Ek Samvad at Arunim Ankuran. Today we are in conversation with a very special guest, a happy homemaker. She's Mrs. Shweta Srivastav, MSc Chemistry, Associate of Arts in Graphic Design. Welcome to Ek Samvad, Shweta. What about Arunim Ankuran? Arunim Ankuran is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe that each person is unique and special in some way, and we celebrate that difference. And that's what brings us to our special guest today. So, all of us have been through this experience of schooling where there is a form and you're supposed to write the occupation of your father, occupation of your mother. And when it comes to occupation of the mother, especially those who have mothers who are homemakers, the children are very confused and they wonder what to write. So, what is your occupation, Ma? This is a question. And I think it is a very good time to start taking pride and marking the column as homemaker and be proud homemakers, because what homemakers do is they wear multiple hats, and but a homemaker is so unique because of so many things that they combine so many different roles in so many different ways. So, a warm welcome to you, Shweta, and thank you for being on Ek Samvad. Thank you for inviting me on this platform. So, we'll start with, Shweta, all of us have a different journey in life. We are born in a certain place and then we travel to so many different places. So, talk to us about Shweta's journey. Shweta's journey. I was born in Bilaspur. Bilaspur is it's a small city in Chhattisgarh. Hmm. So from there, when I got married, I shifted to US. So from Bilaspur to US, it was a totally different culture, and everything was different for me. बिकॉज बिलासपुर में हम पढ़ाई कर रहे थे, उसके बाद फिर वहां से एकदम से यूएस जाना, कभी बहुत ज्यादा मेट्रोज में रहे भी नहीं और बिलासपुर से सीधा यूएस चले जाना, तो वहां से कल्चर को अडॉप्ट करना उसका अच्छा था। जर्नी भी बहुत अच्छी थी, वहां पर काफी सारी चीजें सीखने को मिली। लाइक वहां पर जाके मैं बहुत लोगों से जो इस तरह से बातें करना, वो सब वहां से ही मेरा ज्यादा चालू, क्योंकि वहां पर एक चीज बहुत अच्छी मेरे को देखने मिलती है। इंडिया में हम वेट करते हैं कि कोई किसी को इंट्रोड्यूस करवाए, फिर हम एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। वहां आप खुद से ही रास्ते में आते जाते लोग भी आपको हेलो हाय करते रहेंगे। तो उस तरह से आज जो मैं कहीं भी तो लोगों से मेरी फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है। वो उसका रीजन वही है कि लोगों से मिलना, बातें करना इस तरह से शुरू हो गया, फिर काफी सारे फ्रेंड्स बन गए। एंड देन आई केम बैक टू नागपुर। नागपुर में भी काफी सारे फ्रेंड्स बन गए। सो that is my journey from Bilaspur to US, then again to Nagpur, and I am well happy and settled over here in Nagpur. And Shweta is that one person in the society, जो हमारे apartments में, whom everybody can look around for, and if everybody needs a reason to smile, Shweta is always there. And ये जो एक तुम्हारी quality है, where did you pick up from? What were some of the influences in your life? Major influence in my life was my mother. She expired a couple of years back, but she was the major influence in my. I've seen her doing so many things. She used to manage the time accordingly, and she was so cheerful, so happy. If she is in pain also, then nobody will know that she is in pain. That's the quality I like best about her. And then she used so many things. she मैंने उनको सीखना, चीजों को सीखना, नई चीजों को जानना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो फिर उनसे वो सब चीजें मैंने सीखी। जैसे मेरे हॉबी, एक तो हॉबी भी होती है, तो एम्ब्रॉयडरी हो गया, ड्राइंग करना, इस तरह की चीजें, क्रोशिया करना, वो सब मेरी हॉबी है। तो उसके लिए मेरे को टाइम निकालना जरूरी है, कुछ भी हो जाए उसके लिए टाइम होना चाहिए। वो मम्मी थी। फिर मेरी एक टीचर थी, केमिस्ट्री की टीचर थी। सो बिकॉज ऑफ दैट टीचर ओनली आई टुक केमिस्ट्री एज माय मेजर। एमएससी करना वो मेरे को उनकी वजह से, क्योंकि वो मेरे को बहुत, इन्हें पहले कभी सोचा नहीं था कि केमिस्ट्री में एमएससी करना है, लेकिन वो टीचर का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि मैं एमएससी केमिस्ट्री की तरफ टर्न हो गया। याद है क्या? कुछ शेयर करो कि कैसे पढ़ाती थी?
अब उतना तो याद नहीं है, पर उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना अच्छा लगता था, समझ में आता था, लगता था अरे वाह ये तो कितना अच्छा सब्जेक्ट है, तो उसकी वजह से बिकॉज केमिस्ट्री काफी यूजली लोगों को टफ लगता है। अच्छा लगा। हाँ, लेकिन वो टीचर पढ़ाने का तरीका, शी वॉज अ वेरी रियली गुड टीचर, हम्म, एंड शी टॉट मी ओनली 1 year, आफ्टर दैट शी गॉट मैरिड। हाँ, अच्छा। ओके। सो श्वेता, बिकॉज एवरीबडी विल नॉट नो कि तुम क्या क्या करती हो, तो एक बार प्लीज बताओ कि तुम, बिकॉज आई एम सो, आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दिस टू यू कि मुझे इतना अमेजिंग लगता है कि देयर इज हार्डली एनीथिंग दैट यू डोंट डू। कितनी सारी चीजें करती हो, सो जस्ट एक बार रिकाउंट करो कि क्या क्या करती हो। हम्म। क्या क्या कर, जैसे माई हॉबीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड, हाँ। लाइक आई लव कुकिंग, हम्म। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी हम्म। क्या करना, एनिमेशंस ऑल्सो, हम्म। मेकिंग ज्वेलरी, आजकल नई हॉबी शुरू हुई है ज्वेलरी मेकिंग का। तो इस तरह से हर चीज, ये सब शौक है। एंड एक श्वेता, तुमको भी कभी ना कभी ये डिलेमा जैसा होता होगा, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया, इफ यू आर नॉट वर्किंग, एवरीबडी थिंक्स कि वर्क करने वाले लोग दे आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल, एंड हाउसवाइफ, एंड आई हैव ऑफन हर्ड, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, ओ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। सो व्हाट इज योर हाँ, टेक ऑन दिस? शेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन। कभी कभी लगता है, ये चीज जरूर लगती है कि हाँ कुछ करना चाहिए, हम कुछ जॉब नहीं कर रहे हैं, पर फिर वही लगता है कि हम घर में ही इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, टाइम अपने लिए ही निकालो। जॉब करते हैं लोग, उसमें फिर क्या होता है कि यू आर अर्निंग, पर उसमें कहीं ना कहीं तुम फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो। हम्म। जॉब करना अच्छा है, पर जब जरूरत हो तब करो, मेरा ये मानना है कि जब जरूरत हो तब करो, जब जरूरत नहीं है तो फिर क्यों करना, क्योंकि आप बच्चों को फिर डे केयर में छोड़ते हो, कुक लगाते हो। सो हम्म। मेरी तो हॉबी ही कुकिंग है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कुक लगा कि मैं हाँ। घर में, हम्म। तो जॉब क्यों करूं जब मैं घर में खाना बना के बच्चों को खुश कर सकती हूँ। सो आई प्रेफर डूइंग दैट। पर हम्म। हाँ, कभी कभी वो चीज लगती है जब सबको को देखो कि अरे वाह वो जॉब कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, शी इज अर्निंग दैट मच, समटाइम्स यू फील दैट, बट हम्म। आई एम फाइन विद। So if you think of it like this, कि it's a choice, हम्म। एवरीवन कैन मेक अ चॉइस कि हमें ये चूज करते हैं, तो श्वेता ने ये चूज किया हाँ है ना? हाँ हाँ। वो जो घर में बीइंग एट होम, बीइंग अ होम मेकर, व्हाट आर सम ऑफ दोस थिंग्स की जो तुमको देख के लगता है कि नहीं, दिस इज जस्ट द राइट थिंग फॉर। कि जैसे लगता है कि जब आप कुछ बनाते हो और यू गेट अप्रिशिएटेड, तब लगता है कि नहीं, दिस इज द बेस्ट थिंग। हाँ। लाइक बच्चे लोग हमेशा बोलते हैं मम्मी ये तो तुम्हारा रेस्टोरेंट के खाने से भी ज्यादा अच्छा खाना है, तब हम्म। बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह वी आर डूइंग समथिंग राइट। सो तुम्हारी जो जर्नी थी, जैसे बिलासपुर से तुम निकली, बहुत यंग थी, तो कौन कौन सी हाँ, ऐसी चीजें थी जो तुमको अभी भी याद आती है कि हाँ, दे हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी, मैंने उनसे कुछ सीखा? ओवरऑल जो जर्नी थी, मेरे जो वहां पर फ्रेंड्स बने, जिनके साथ में रही, उन लोग का सबका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आता चला गया। जैसे कोई कोई जो है वो एक्सट्रोवर्ट ज्यादा है, तो मेरे को उसकी क्वालिटी अच्छी लगती थी। किसी के साथ जो है, कोई कोई ऐसा होता है ना, किसी के साथ आपको बात करना अच्छा लगता है, तो फिर आप उसमें सोचते हो कि क्यों ये पर्सन जो है, क्यों हमको पसंद आ रहा है, क्यों हमको ये अच्छा लग रहा है, तो फिर उसकी क्वालिटीज आप अडॉप्ट करने की कोशिश करते हो। तो उस तरह से बहुत सारे लोगों से मिलके फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हो गया। शादी के बाद जब मैं वहां यूएस गई, तो फिर मैं और हस्बैंड बस अकेले वहां पर थे। कभी बिलासपुर में बैंक का कोई काम कुछ भी मैंने नहीं किया। वहां पर जाके धीरे धीरे, ईद को तो ऑफिस जाना है, वहां पर बाहर जाके सब चीजें लाना करना, तो उस तरह से धीरे 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 सब चीजें मैं सीखते चली गई, बाहर की चीजें, घर की चीजें, इस तरह से सीखा। तो कौन कौन सी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी स्मूथ रनर, सो टू से, तुम्हारा जो होम मैनेजमेंट, इट इज रियली अमेजिंग, है ना? तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होम मैनेजमेंट की तुम टिप्स शेयर कर सकती हो? सबसे अच्छा कि आप पहले से प्लानिंग कर लो, कुछ भी चीज अगर करना है, अगर आपकी प्लानिंग रहेगी तो वो स्मूथली होता है। जैसे सुबह हमको ये काम करना है, इतने टाइम तक हमारा ये काम हो जाना चाहिए,
टाइम तो हमारे पास उतना ही है, काम हमारे पास फिक्स्ड कुछ कुछ काम होते हैं, जैसे बच्चों का टिफिन बनाना है, लंच बनाना है, डिनर बनाना है, ये सब काम फिक्स्ड है। तो फिर हर चीज के लिए टाइमिंग्स आप अलग अलग कर लो तो इजी हो जाता है। जैसे मेरा टाइम है कि 11 से 12 बजे तक मेरा सारा सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच वंच सब फिनिश हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा टाइम है, यूजुअली मैं 3 to 6 का जो 5:30 to 6, 3 to 5:36 जो है वो मेरा मी टाइम है। उस समय मेरे को जो करना है, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो, उस समय मैं अपने हॉबी की चीजें करना चाहती हूँ। तो इस तरह से टाइम को अगर डिवाइड कर लो तो इजीली सब चीजें हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि यू नो इवेंट्स जो अपार्टमेंट्स में सोशल इवेंट्स होते हैं या वो सब होते हैं, तो श्वेता इज वन पर्सन हु इज देयर always and not just physically present, she's involved. And so how do you manage to do so many things? I mean, कैसे कंबाइन करती हो इतनी सारी? जैसे तुम एक एक रेगुलर डे डिस्क्राइब किया तुमने अभी अपना, पर तुमको अगर पता है कि अभी कुछ इवेंट्स होने वाले हैं या क्या, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू, हाउ डू यू बी रेडी फॉर एवरीथिंग? हम्म। अगर आपके पास वही वही वाला चीज है कि अगर आपको पता है कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे ये चीज करना है, तो हम्म। आप उसकी प्री प्लानिंग कर लीजिए। प्री प्लानिंग, इफ इफ हैव डन द ऑल द प्री प्लानिंग, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी प्री प्लान है आपका, सब चीज है। खाना जो है, अगर आपको 8 बजे नीचे जाना है तो आप खाना 7:38 तक रेडी कर दीजिए, ताकि नीचे आप चले जाए आराम से, घर में लोग अपना खाना बस निकाल के खा लें। इस तरह से ना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, हम्म। और और क्या इन्वॉल्व क्या? होना, ये हम्म। मजा मजा आता है। जो जो प्रोग्राम होते हैं उसमें तो मजा करने के लिए तो आदमी कुछ भी कर एंजॉय करता है, तो उसको तो टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ। सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। और जैसे फॉर एग्जांपल फेस्टिवल सीजन है या कुछ है, सो यू आर ऑलवेज मेकिंग समथिंग डिफरेंट एंड स्पेशल एंड यूनिक। तो ये वाली जो चीज है कि ऑलवेज लर्निंग समथिंग न्यू एंड डूइंग थिंग्स, तो ये वाला क्या श्वेता का एक पहलू है? हाउ डज दिस हैपन? मतलब कैसे तुमको मोटिवेशन मिलता है कि मेरे ठीक को है? खुद को मीठी चीजें बहुत पसंद है। तो हम्म। जब भी यूट्यूब में देखिए आपके कुछ खाने की नई चीजें आ रही है, कुछ रेसिपी दिख रही है, तो फिर ट्राई करना होता है एक बार। बच्चों को जो है वो, उन लोग का अलग अलग टेस्ट रहता है, तो बच्चे भी मम्मी ये ट्राई करो, मम्मी वो ट्राई करो, और फिर जब कुछ अच्छा बन गया तो अच्छा लगता है। हम्म। तो कुकिंग तो वैसे भी मेरी हॉबी है। अलग और अलग तरह की कुकिंग कर, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाने मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो फेस्टिवल के समय में तो और डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाने में मजा आ जाता है। और मीठा वैसे भी सबको पसंद है, तो मीठी चीजें बनानी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हम ये करेंगे, तो व्हाट डज श्वेता थिंक अबाउट हर लाइफ? व्हाट डिड शी थिंक एंड हाउ डज शी फील अबाउट इट नाउ? मेरा पहले से ही बहुत क्लियर था कि मेरा पहले तो मेडिकल की तैयारी करी थी, पर मेडिकल में इतना कंपटीशन था कि उसमें हो नहीं पाया। तो फिर था कि एमएससी केमिस्ट्री करना है और फिर टीचिंग लाइन में जाना है। बट मैरिज हो गई, यूएस चले गए, तो फिर टीचिंग लाइन में तो नहीं गई। पर हाँ, अभी भी मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाना अच्छा लगता है। दोनों बच्चों को मैं केमिस्ट्री में ही पढ़ाई हूँ अभी तक। छोटी वाली डॉटर 12th में है, उसको भी अभी इस साल मैं ही पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से मैं अपने शौक तो पूरा कर ली, टीचिंग वाला शौक मेरा पूरा हो गया है। हाँ। तो सो आई डोंट मिस आउट ऑन दैट। एंड जैसे कि हम लोग अपनी सोसाइटी को देखते हैं श्वेता, कि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लगता है कि द हाउसवाइफ डजंट गेट हर ड्यू, जितनी रिस्पेक्ट और वो मिलना चाहिए। तो तुमको कैसा लगता है? आई मीन, हैव यू एवर थॉट ऑफ इट लाइक दैट? और कभी कभी ऐसे होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस फॉर्म थिंग, आई रोट एन आर्टिकल ऑन दिस बिकॉज मुझे हमेशा से ये लगता था कि uh, अगर हम हाउसवाइफ भी लिखें या होम मेकर जो भी लिखें, तो वो जो रोल है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो तो कम नहीं हो जाती ना, बिकॉज इट इज compared to all other professions, it's such an important one. The only difference is there is no salary check. और वो अगर सैलरी चेक बनना शुरू कर दे तो यू नो हाँ। तो व्हाट इज श्वेता's पर्सपेक्टिव? हाँ, वो तो है, पर सबके लिए अलग अलग रहेगा, सबका पर्सपेक्टिव अलग रहेगा। मेरा ऐसा है कि मेरे घर में मेरे को एज अ होम मेकर काफी रिस्पेक्ट मिलता है, क्योंकि कुकिंग की हमेशा तारीफ होती है। कभी ये नहीं बोला जाता है कि तुम तो कुछ कर नहीं रही हो, सब हमेशा ही होता है तुम तो हमेशा बिजी रहती हो। तो
उस तरह से तो रिस्पेक्ट के हिसाब से तो आई एम गेटिंग फुल रिस्पेक्ट। वो उस तरह का नहीं है कि अरे तुम तो कुछ काम नहीं कर रही हो, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम इन माई हाउस। बट हाँ, बहुत जगह इस तरह की प्रॉब्लम होती है, अरे तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, कुछ तो करो, इस तरह से लोग बोलते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि घर के काम इतने ज्यादा होते हैं, A to Z बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसको मैनेज करना और ठीक तरह से चलाना वो भी एक बहुत बड़ा काम है। And हाईएस्ट सैलरी तो हम चाहिए। हाँ nobody can afford to keep a housewife actually. और जो बच्चों के पर्सपेक्टिव से है कि जो मदर का हम्म, रोल है as a हम्म, as a homemaker, such a big हम्म, contribution the homemaker makes, हाँ, है ना? हाँ, So what is the feedback you get from your kids? कभी ऐसे होता है बिकॉज कभी कभी बच्चों को भी ऐसे लगता है कि उसकी मम्मी तो कर रही है, उसकी मम्मी तो कर रही है, सो हाउ डू योर चिल्ड्रन रिएक्ट समटाइम्स? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट? वो तो कभी वो लोग नहीं बोलते हैं कि मम्मी उसकी मम्मी कर रही है, उसकी मम्मी तुम भी करो। लेकिन कभी कभी वो बोलते हैं कि तुम इतनी चीजें जानती हो, तुम तो जॉब करने जाओ तो तुम तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगी। ये एग्जैक्टली, जरूर बोलते हैं। यस. हाँ, So this is the point, that just because someone made a choice not to go outside and work, it should not हाँ, diminish their respect and जो उनको हाँ, मिलना मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए एक्चुअली, है ना? और हाँ, अभी इन रिसेंट टाइम्स श्वेता ने गाना भी गाना शुरू किया है. शी इज मतलब दिस वर्चुअली नहीं हो एवरीबॉडी जो. हाँ, नहीं हो. गाना गा है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जो होम मेकर्स हैं वो बहुत सारी चीजें करते हैं, एंड जो हाँ, एफिशिएंटली अगर किसी को घर चलाना है तो यू नीड टाइम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, वही सब स्किल्स जो कि इन यस, वर्क स्पेस चाहिए आपको, है ना? हाँ, सो basically organize and you have to do the time management, हाँ, pre-plan everything, then हाँ, it everything works smoothly. हाँ. So, what do you want to say to anybody who's listening in? Because luckily तुमको appreciation मिलता है, and everyone recognizes the thing, So those people who don't value the homemaker, what do you want to say to them? आई विल से दैट सबको होम मेकर्स को तो वैल्यू करना ही चाहिए, क्योंकि होम मेकर्स का तो रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। पूरा घर उनकी वजह से ही चल रहा है। सबको खुश रखना, सबके साथ मिलके रहना, वो होम मेकर ही अगर कर रही है तभी वो अच्छे से घर चल रहा है। तो रिस्पेक्ट तो हर किसी को करना ही चाहिए। अनफॉर्चुनेटली किसी किसी के घर में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बट उन लोग को भी, जो होम मेकर है, उनको भी किसी तरह से लोगों को ये बताना भी चाहिए कभी कभी कि भाई हम भी कुछ काम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहे हैं। अगर कोई नहीं समझ रहा है तो समझाना जरूरी है। बच्चों को भी अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो हम 3 बार 4 बार उनको वही भी चीजें समझाते हैं। उसी तरह जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि होम मेकर शुड बी रिस्पेक्टेड, उनको ये बात बतानी चाहिए कि हम कितना काम कर रहे हैं एंड वी नीड रिस्पेक्ट, वी शुड बी रिस्पेक्टेड। Hmm, exactly. Among the things that you are doing, Shweta, recently, जैसे सबसे exciting चीज क्या लग रही है तुमको? अभी सबसे एक्साइटिंग लग रहा है, मामा के बच्चों के लिए मैं एक ई कार्ड डिजाइन कर रही हूँ, जो ई वाइट बेसिकली वो डिजाइन कर रही हूँ। उसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर अभी ओपन शॉट में बना रही हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर सीखना वो मेरे लिए भी सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज है। तो वो नया है, क्योंकि मैं अभी तक जो एनिमेशन करती थी फ्लैश में करती थी, अभी फ्लैश आउटडेटेड हो गया है, तो मुझे नया कुछ चूज करना है। तो आई एम लर्निंग ओपन शॉट नाउ। सो ये एक्साइटमेंट चल रहा है अभी। So this whole experience, the idea that if you are a homemaker, there is one dimension of being at home and doing things at home. पर इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे for example you said कि तुमने MSc chemistry किया है, so you put that to use. तुमने अपने हाँ, बच्चों को पढ़ाया, and also जो तुम्हारा education है, you are still using it. The only difference is घर से बाहर जाके नहीं कर रहे हैं, हम अपने घर के comfort zone में कर रहे हैं, right? है हाँ, ना? यस, तो श्वेता इज वन पर्सन जो यहाँ पर जो भी wherever she is you can always see happy faces. So श्वेता, हम लोग before we conclude this conversation, is there something that you want to share with everyone? The value a homemaker brings to other people's life. तो होम मेकर सब, जो भी घर जो है वो पूरा तो एक होम मेकर की वजह से ही चल रहा है। तो उसकी तो घर में सबसे टॉप पोजीशन तो होम मेकर की ही होनी चाहिए। Hmm. बट ऐसा होता नहीं यूजुअली सबके घर में।
पर मेरे ख्याल से तो होम मेकर लोग को अपना रिस्पेक्ट खुद ही करना चाहिए और उनको दूसरों से रिस्पेक्ट करवाना चाहिए कि भाई हम होम मेकर हैं, हमको हमारी रिस्पेक्ट करो। Something from your experiences with your mother, because our mothers are our inspiration, you know. उस हाँ, जमाने की जो होम मेकर्स हैं, वो मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि उनको जितनी सारी चीजें आती थी, बिकॉज हमारी जनरेशन नहीं सीख पाई, वो सब चीजें धीरे धीरे फिनिश हो जाएंगी, बट दे वर अमेजिंगली टैलेंटेड पीपल. Like they would just about everything, right from achar making to making beautiful embroidered frocks, everything. कितनी सारी skill set था उनके पास, जो कि खो यस। जाएगा, है ना. पर तुमने अपनी मम्मी से एक स्किल सेट सीखा है, तो कुकिंग जो है, मम्मी उस जमाने में जो भी ट्रेंड चलता था कुकिंग का, हमारे घर में ऐसा था कि हम बाहर आउटिंग रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो उसमें वैसे भी बहुत कम ट्रेंड था, बाहर से हम लोग खाने का बहुत कम जाते थे। मम्मी ए टू जेड हर चीज, चाहे वो पानी पूरी हो, छोला भटूरा हो, साउथ इंडियन खाना हो, नॉर्थ इंडियन खाना हो, कोई भी चीज हो, मम्मी हर चीज घर में बनाती थी। तो वो देख के मेरे को लगता था कि वाह, मम्मी तो कितनी अच्छी कुकिंग करती थी। फिर धीरे धीरे मम्मी से काफी कुकिंग सीखी मैंने। हम्म, और अरे, कभी घर में खाना बनाती थी नहीं थी, लेकिन जब कुछ बनाने का टर्न आएगा तो मेरे को स्पेशल डिशेस ही बनाना रहता हम्म, है। ऐसा नहीं कि रेगुलर दाल चावल रोटी सब्जी, उसमें बनाने में मेरे को आज भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, पर हाँ, वो हाँ, बनाना पड़ता। हम्म, पर स्पेशल डिशेस बनाने में उस समय भी बहुत अच्छा लगता था और आज भी बहुत अच्छा लगता है। तो मम्मी से मैं वो चीज सीखी कि मम्मी भी हर समय हमारे घर में कुछ ना कुछ स्पेशल बनते रहता था। फिर हम लोग कभी इस कपड़े जो है रेडीमेड नहीं, मम्मी हर समय स्टिच करती थी, और इतने सुंदर सुंदर, हम लोग कोई भी पैटर्न मम्मी को लाके दे, मम्मी स्टिच कर लेती थी। एम्ब्रॉयडरी बोलो तो वही मम्मी को देख के लगता था कि मम्मी कितनी चीजें जानती है। मम्मी से सीखना है वो सब चीजें, तो वो सब चीजें सीखी। फिर धीरे धीरे मम्मी से भी ज्यादा अच्छी चीजें मैं बनाने लगी। तो अभी तो ऐसी हालत हो गई थी, मम्मी बोलती, बेटा तुम ये चीज कैसे बनाती हो, थोड़ा बताना। तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो चीज मम्मी जब मेरे से पूछती थी कि बेटा तुम ये कैसे बनाती हो, थोड़ा उस, तो हाँ मम्मी, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा सीख सीख गई। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि हाँ, मम्मी मेरे से कुछ पूछ के बना रही है। हाँ, उन लोग को तो बहुत सारी चीजें आती थी, पर हम, हाँ, उनसे काफी चीजें मैंने सीखी है। मम्मी भी हर किसी को हेल्प करती थी, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह से कोई भी मम्मी को बोले ये चीज सीखना है, मम्मी हाँ, सिलाई सीखनी है, बिनना सीखना है, मम्मी लोग का पूरा सब आंटी आ जाती थी, मम्मी दोपहर में बैठ के सिखाती रहती थी। तो उस तरह का था। आई थिंक हम लोग की ऑल ऑफ अस हैव दोज मेमोरीज, यू नो, कि हाँ, मतलब at that time the homemakers were more prominent because working women were fewer. तो most of the हाँ, mothers used to be homemakers, and वो बहुत सारी चीजें वो सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे. किसी का स्वेटर का अगर आपको डिजाइन अच्छा लग गया तो इधर आओ, तो फिर वो उसकी, एंड दे ट्राई हैड दिस, लाइक उनको ना बना। किसी से पूछना नहीं पड़ता था, वो देख के उनको पता, लाइक इवन माय मदर, उनको ना देख के दे नो कि अच्छा ठीक है ये कैसे बनाया हाँ, जाएगा. So they were, मतलब the whole idea is कि वो जो उनकी unique kind of intelligence, and हम्म, I think they were brilliant. They are even in now also. तो thank you Shweta for sharing your experiences. And मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत important एक question है कि what is your occupation, माँ? The answer should be that, you know, I'm a proud homemaker. If someone is a homemaker, to be a homemaker also is a matter of pride. This episode is dedicated to all homemakers and all the wonderful people who do so many different things. और एक सबसे बड़ी बात ये होती है, without um, a package, there is no salary, there is no check, and they are doing it for other people, जो family people they love, you know. So yeah. thank you Shweta for being here. It was थैंक great यू talking. भाभी। बहुत मजा आया तुमसे बात करके. हाँ, आई ऑल्सो रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। अच्छा लगा। हाँ, एंड बिल्कुल. थैंक यू सो मच। तो श्वेता, देखो, जो एक होम मेकर की जो फिलॉसफी है, उसको ध्यान में रखते हुए एक गाना गाओ, फिर हम लोग कंक्लूड करें. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। लवली. थैंक यू. थैंक यू। थैंक यू श्वेता. बाय.